Today we are going to start a fresh topic, and it's you can say it's a new language. You can say it's PHP, right? Today we are going to study about PHP. So first of all, we start with introductions. What is PHP? So PHP. Firstly, we have to think why we use PHP and why this type of work we can perform in PHP, but that work can't be performed in HTML or CSS. You can think on it. I replied the answer of that questions. Basically, in HTML, you are not going to perform any logical operator, any calculative work. In HTML, this type of work can't be performed. But in PHP, you are able to perform that type of work. For example, if you want to find prime number between 1 to 10, you want to print factorial of 5. This type of logical problems you can perform on PHP but not on HTML. That's why we are going to PHP. That's the main reasons why we move from HTML to PHP. Which type of work we can't perform on PHP, on HTML, but we are able to perform that work in PHP. So PHP, first of all, PHP is work. Yeah, it's work on server side. It's not work on a browser. HTML work on browser, but PHP needs server. Okay, and first of all, we can say it is a scripting language, and this language we are used to make dynamic and interactive web page. All right, and you can say it's a very compulsory scripting language we need to learn. Okay, so we start with uh, we start with one code which we are doing from initial, that is to printing hello world. When we are going to start any programming language or scripting language with any type of language, you are start with printing hello world. That is our traditions which we follow always. So first of all, printing hello world. So in PHP there is a one terms that is echo, which we use for print any output. And in double quotes you write text echo hello world. All right, and you are done. You can run it. Hello world is executed successfully. So this is how it is work. So now we move to another example. Okay, uh, and of course PHP. I speaking PHP. What PHP terms means? PHP stand for hypertext preprocessor. Okay, PHP is a powerful enough to be at a core of the biggest blogging system on the web. All right, why PHP? PHP because PHP run on all major platform: Windows, Linux, Unix, Mac OS, etc. Point number two, PHP is a compatible with all leading web server. Example, NIG, Nginx, या NIG, NGINX,
Apache, Cloudflare, Microsoft, IIS. Point number third, PHP support a wide range of database, MySQL, PostgreSQL, MS SQL, etc. We are giving one disclaimer to learn PHP that before starting PHP, you have a knowledge, basic understanding of the HTML, CSS, and JavaScript. Okay, now what is PHP file? So PHP file have a file extension .php. If you write any PHP program, save it, name with extension PHP. What can PHP do? PHP can generate dynamic page content. PHP can create, open, read, write, delete, and close files on the server. PHP can collect form data. ठीक है? And yes, PHP can send and receive cookies. PHP can add, delete, and modify data in your database. Okay, this is a PHP's features, and we move to the PHP syntax. So PHP script is executed on the server. What I'm saying, PHP script is executed on the server, and plain HTML result is sent back to the browser. क्या कर रहे हैं कि हम कहना ही चाहते हैं कि PHP को जो भी PHP का स्क्रिप्ट होता है उसको हम सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं और जो प्लेन HTML होता है वो ब्राउजर पे चला जाता है उसका रिजल्ट. PHP script can be placed anywhere in the document. Okay, PHP script start with this. This is the starting script, and this is your ending script. This script always compulsory in any programming, in any language when we are going to writing in PHP. PHP file normally contains some HTML tag and some PHP script code. Yes, obviously PHP there are some HTML tag also and PHP scripting code also. I will do HTML and PHP script both in this code, and I will run in front of you. Let's see. First of all, we will start with HTML, then body, okay. In heading 1 we write 1 minute, we can write my first PHP page. ठीक है, this is the content in heading. Now in body we can write this is the syntax starting of PHP, angle bracket, question mark, and PHP, and we are using echo for output. Echo अपना नाम ही ले देता हूँ, रोहित, ROHIT, रोहित कुमार. All right, and this is our ending of PHP. Okay, now we are going to run it. Here you are seeing like this. I think it does not work properly as per what I have given. There is some problem. देखिए ये आउटपुट आने का कारण यह है कि हमने इस कोड को जो है
इस पे हमने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया अभी तक। नतीजा ये होता है कि जैम्प इंस्टॉल नहीं करने के कारण HTML को ये प्रॉपरली रेंडर नहीं कर पा रहा है और हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा है। तो किसी भी PHP को रन करने के लिए सबसे पहले हमें एक जैम्प एक सॉफ्टवेयर है, हमें जैम्प सबसे पहले जैम्प को इंस्टॉल करना होगा। फिर उसको हम उस जो भी फाइल है उसको हम सेव करेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम देके, कोई भी नाम प्लस .html एक्सटेंशन देंगे। फिर जैम्प को हम hdocs में रखेंगे और फिर ब्राउजर को ओपन करेंगे, तब जाके ये हमारा सिर्फ आउटपुट देगा। नहीं तो ये हमेशा ये सब लिखेंगे ना HTML दिस दैट, ये सब तो देते रहेगा। ठीक है, अगर सिंपली इसको हम रिमूव कर दे HTML के पार्ट को, तो देखिए कुछ आएगा प्रॉपर आंसर, आउटपुट सिर्फ आएगा। अब देखिए रन करते हैं, एनीवन रोहित कुमार इज ऑन स्क्रीन। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू नॉट इंस्टॉलेशन ऑफ जैम्प। तो जैम्प इंस्टॉल करके एक बार कीजिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट, जो भी PHP का स्टेटमेंट्स होता है ना, उसमें हमको सेमी कॉलन से उसको एंड करना होगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे PHP केस सेंसिटिव। सो PHP केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, या नहीं होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो होता है नहीं होता है वो देखने के लिए हमें लिख लिख एग्जाम्पल करके ही देख लेते हैं। यहीं पे ऑन द स्क्रीन इको ऑल राइट, करें ना, दो बार आना चाहिए अगर अलाउ है तो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसको करें बियर, यूज कर दे टैग, तो चीजें प्रॉपरली सही आएंगी। ठीक है, ऑल राइट, ये बियर आ गया। ठीक है, आई थिंक इसको यहाँ से हटाइए, एंड इन दिस वे बियर आई थिंक एरर आएगा। यस, एरर आ गया। ठीक है, हम्म, के के ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बियर टैग एक्शन करने के बजाय ये सिर्फ जो हम बियर टैग यूज किए थे वो सिंपली आउटपुट में दिख रहा है। कारण सिंपल जैम्प वाला प्रॉब्लम है। जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो ये टैग दिखेगा नहीं, बल्कि ये टैग का यूज हम करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो ये रोहित कुमार जो है ना, इसके बाद इसके नीचे रोहित कुमार चला आता है। ठीक है, तो जो भी हम HTML के टैग को यूज करने के लिए हमको जैम्प इंस्टॉल करना होगा, तभी वो हम उसको हम सर्वर पे वो वर्क करेगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे PHP में वेरिएबल्स की, उसका केस सेंसिटिव से क्या रिलेशन है। तो PHP में वेरिएबल्स जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर दो कीवर्ड को, एक को स्मॉल और एक को कैपिटल में लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस मीनिंग यहाँ पे कंपाइल ये PHP में ये PHP के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। लेट्स से कि हम एक वेरिएबल, इसको पहले डिलीट कर दें। ठीक है, तो इसमें हम पहले एक वेरिएबल साइन कर लेते हैं। वेरिएबल को हम डॉलर से स्टार्टिंग उसका जो है डॉलर यूज करके ही करते हैं, बाकी कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं। लेट्स से कलर ले लेते हैं, इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, उसके बाद आउटपुट के लिए इको यूज करेंगे, इको माई कार्ड इज
कलर में ठीक है, एंड इसको एंड कीजिए। और एक और हम लेंगे, वेरिएबल लेंगे इको माई, लेट्स से हाउस इज करके आर कलर, ठीक है। देखते हैं क्या आता है आउटपुट, क्या आना चाहिए आउटपुट। देखिए, पहले हम वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन कर दिए ब्लू, तो इसमें माई कार इज ब्लू आ जाएगा, और इसमें ये और ये दोनों अलग चीज है, उसको ट्रीट करेगा एज अ डिफरेंट। तो इसमें सिंपल माई हाउस इज आएगा, ठीक है। माई कार इज ब्लू, और इसमें कुछ देख रहे हैं, कुछ एरर आया है, अनडिफाइंड वेरिएबल कलर इन द, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल से। तो इसको ये रीड नहीं कर पाया। अब इसी को हम डॉलर कलर इज इक्वल टू रेड कर दे, तो शायद से ये पढ़ ले या समझ ले। माई हाउस इज ब्लू, माई हाउस इज रेड, समझ गया। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव वेरिएबल में मैटर करता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसका, जैसे कि हमने बात किया केस सेंसिटिव वेरिएबल्स, और इसको डेप्थ में बात करते हैं क्या होता है वेरिएबल्स। पहले बताएंगे, वेरिएबल्स एक कंटेनर है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। वेरिएबल्स कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक $x, $y, whatever you want you can take, ओके। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। फॉर ऑपरेशन एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं। सर एक वेरिएबल लेते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू 5 एंड विथ सेमीकोलन, del y is equal to 2 end with semicolon, और इको del x del y and with semicolon, and you will get output 7. As you can see on the screen, it will work. So this is how the variables work in the PHP. Now we move to PHP variables and their data type, okay। तो देखिए, डेटा टाइप में बेसिकली एक चीज इम्पोर्टेंट है कि PHP सपोर्ट करता है स्ट्रिंग को भी, इंट, फ्लोट, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स एंड मिक्स वैल्यू को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसको हम, देखिए, इसमें एक फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम होता है वैर अंडर स्कोर डम्प। वैर अंडर स्कोर डम्प एक फंक्शन है जिसका यूज करते हैं हम डेटा टाइप को गेट करने के लिए एंड वेरिएबल्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको हम आपको दिखा देते हैं कैसे वैर डम्प यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले वैर डम्प 5, ठीक है। ये हमारा इंटीजर है, तो हमें इंटीजर शो होके मिलेगा। वैर डम्प कैरेक्टर रोहित, सॉरी सॉरी, वैर डम्प फ्लोट 3.14, ठीक है। वैर डम्प बुलियन ट्रू, where dump
अरे ले लेते हैं इसमें 2 3 4 ठीक है। हम्म, एक और है एट डंप नल ठीक है। आउटपुट में बता देते हैं क्या क्या आएगा। ये डेटा टाइप यूज करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं वैट डंप। हमने वैल्यू 5 डाला है तो ये हमें इंटीजर बताएगा। ये स्ट्रिंग फ्लोट बूलियन अरे एंड नल you can observe int 5 string 5 like this that ठीक है। तो अब देख लिए कैसे क्या है। ठीक है। हम्म, तो ये हमने PHP में डेटा टाइप को कैसे लिखते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके स्कोप ऑफ PHP क्या क्या है। तो स्कोप 3 स्कोप है, ग्लोबल है, लोकल है, स्टैटिक्स। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।